4 یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 53 باب اس کی 10ویں 11ویں اور 12ویں بائبل پڑھ سکتے ہیں. بائبل ادھر پڑھی ہے بائبل کے لیے 10ویں آیت. لیکن خدا کو پسند آیا کہ اس نے اسے غمگین کیا جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا. اس کی عمر دراز ہوگی اور خدا کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلہ سے پوری ہوگی. اپنی جان ہی کا دکھ اٹھا کر اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا. اپنے ہی عرفان سے میرا صادق خادم بہتوں کو راست باز ٹھہرائے گا کیونکہ وہ ان کی بد کرداری خود اٹھا لے گا. اس لیے وہ اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا اور وہ لوٹ کا مال غلاموں کے ساتھ بانٹ دے گا کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انھیل دی اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا. تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی. خداوند کے زندہ پاک اور مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. یہ 53 باب کی یسایہ کا صحیفہ اس کا 53 باب اور یہ آخری 3 آیات جو ہے ان کا تعلق خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کے بعد کا جو کردار خداوند یسوع مسیح کا اس کا بیان اس میں موجود ہے. یہ رویا خداوند یسوع مسیح کی کروسیفکشن کی جو مصلوبیت کی یسایہ 53 باب اس میں ساری کروسیفکشن کا سارا بیان اگر پہلی آیت سے 9ویں آیت تک ہم آئے تو اس میں سارا مصلوبیت کا بیان اور خداوند یسوع مسیح کیا کیا کرے گا, کس کس دکھ میں سے گزرے گا اور کس کس بد کرداری جو ہماری اس پر لاتی جائے گی اور وہ کچلا جائے گا. یہ سب کچھ یہ کروسیفکشن کی صورتحال. لیکن یہ آخری 3 آیات اس رویا تھا جو 700 سال قبل اس سن رائز سروس کی جو پہلی حقیقت ہے وہ یہ کہ میرا صادق خادم بہتوں کو اپنی جان ہی کا دکھ اٹھا کر اپنی جان ہی کا نذرانہ دے کر وہ اپنی نسل کو دیکھے گا. اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ اس سے پہلے کہ ہم اس پر ایمان لائیں اور اس کی اس رویا کی تکمیل کو خدا کے کلام میں دیکھیں تو یہ اس کی کروسیفکشن کے اور جی اٹھنے کے بعد کی خدمت کا ذکر یسایہ کرتا ہے. یہ 700 سال پہلے کا ذکر خدا کے کلام میں موجود اس رویا اور اس معاشرہ میں موجود کہ وہ اپنی جان ہی کا دکھ اٹھا کر اپنی جان ہی کا نذرانہ دے کر وہ کیا کرے گا, وہ اپنی نسل کو دیکھے گا. اس کے لیے اپنی نسل اکلیسیا اس کی میں اور آپ اکلیسیا اس کی نسل میرا صادق خاتم بہتوں کو راست باز ٹھہرائے گا. اور یہ خدا کا آرڈینڈ سسٹم, یہ ڈیوائن مینجمنٹ اور یہ ڈیوائن پروجیکٹ ہے. یہ کسی انسانی طریقہ کاری کے وہ بہتوں کو راست باز ٹھہرائے گا. وہ جو بدکردار تھے, وہ جو گناہ میں غلط تھے, وہ جو موت کے تابع تھے, وہ ان کو ساری صورتحال سے نکال کر وہ اپنی نسل کو دیکھے گا, اپنی جان ہی کا دکھ اٹھا کر. اس کے بعد میں آپ کو اس
मखसूस हवाले की तरफ लेके जाता हूँ जो बिल्कुल सनराइज के साथ, जिसका बिल्कुल तलक सनराइज के साथ। और सनराइज ये याद रखे कि ये खुदा यीशु मसीह के जी उठने का वो वक्त था, वो फटने से पहले, ये वो फटने का जो जिक्र है, ये सनराइज, ये सूरज निकलने से पहले, ये भी खुदा के कलाम में इसका इसका वजूद बयान किया गया, इसका जिक्र किया गया कि ये जब फजल के निजाम, खुदा के फजल के निजाम की इब्तदा होगी तो वो एक फजल के निजाम का नया दिन होगा, खुदा की तरफ से जो मुकर्रर है। ये खुदा यीशु मसीह के जी उठने के साथ उस वक्त में खुदा के फजल के निजाम का आगाज होगा। ये पहला दिन था जहां से खुदा का फजल मेरे और आपके लिए और पूरी दुनिया के लिए शुरू हुआ। छोड़ेगा रब्बुल अफ़वाज फरमाता, लेकिन तुम पर जो मेरे नाम की ताज़ीम करते हो, आफ़ताबे सदाकत ताले होगा और उसकी किरणों में शिफा होगी, और तुम गाँव खाना के बच्चों की तरह कूदो फांदोगे और तुम शरीरों को पामाल करोगे, क्योंकि उस रोज वो तुम्हारे कौल करने की रात होंगे। रब्बुल अफ़वाज फरमाता। और ये जो अल्फाज इसमें इस मुकाशफा में मौजूद है कि आफ़ताबे सदाकत ताले होगा, यानी आफ़ताबे सदाकत वो सन ऑफ राइचसनेस जो जहां से खुदा के फजल के निजाम का आगाज होता है, वो सूरज निकलेगा, खुदा के फजल का निजाम शुरू होगा और ये कलीसिया वजूद में आएगी, ये रास्तबाजों की जमात वजूद में आएगी जो खुदा का निजाम, और जिन्हें खुदा ने रास्तबाज ठहराया, जिनको खुदा ने उनके इल्जाम से बरी कर दिया, उस बगावत के नतीजे से बरी कर दिया है जो मेरी और आपके लिए होगा। और आफ़ताब सदाकत होगा और उसकी किरणों में ये बात आपके लिए, मेरे और आपके लिए बड़ी हौसले की बात है, बड़ी उम्मीद की बात है कि आफ़ताब सदाकत ताले होगा और उसकी किरणों में शिफा होगी। और इसमें शिफा जो है उसमें रूहानी शिफा भी है, उसमें जिस्मानी शिफा भी है, और उसमें कंप्लीट एक डेवलपमेंट का सिस्टम चलता है, इंसानी जिंदगी की डेवलपमेंट इसमें मौजूद है। वो रूहानी तौर पर शिफा उनमें होगी और खुदा यीशु आपका भी सुनाकर ये कुरान यीशु मसीह का टाइटल, और वो जी उठेगा, और वो जब जी उठेगा तो वो उसने जी उठने के बाद अपने आप को आपको इस तरफ भी लेके जाऊंगा अभी, ताकि आप मुकम्मल तौर पर इस मुकाशफा को जो रास्तबाजी की, खुदा की रास्तबाजी की बादशाही, अब वो अबलीस की बादशाही का खात्मा खुदा यीशु मसीह ने किया और उस मौत से, उस गुनाह से, उस तारीकी से हमें छुटकारा दिया। ये उसकी निजात का इंतजाम, और वो पहला कलमा माफी से शुरू हुआ ना, माफी और मोहब्बत और फिर निजात और ये सब कुछ। और इसमें अगर हम जी उठने के बाद का सिलसिला देखकर लूका के इंजीली बयान का 24वां भाग, लूका के इंजीली बयान का 24वां भाग, इसमें आपको दो ऐसे शख्स दिखाई देंगे जो अमाउस की राह पर, जो यरूशलेम से 7 मील के फासले पर, वहां उस अमाउस के रास्ते पर चलते जा रहे हैं। खुदा यीशु मसीह उनके दरमियान साथ साथ चलने लगते और वो इसी क्रूसिफिक्शन के मसलूबियत के, खुदा यीशु मसीह के की मसलूबियत के वाक़े का बयान कर रहे हैं, उसका सुनता और उसमें उनके अंदर उनकी बातों से मायूसी पाई जाती है। और खुदा यीशु मसीह
उनके बीच में चल रहे, उनको सुन रहे, उनकी बातों को सुन रहे। और बाद में खुदा यीशु, आप इसको पढ़ेंगे हवाले को, तो आपको ये सारा वाक्य समझ में आ जाएगा कि खुदा यीशु मसीह ने जब वो जी उठे तो अमाउस की राह पर जाते हुए इन दो लोगों को, दो शागिर्द मैं कहूँगा इनको, इन पर अपने आप को जाहिर किया जी उठने के बाद। और उन पर पाक नविश्तों के भेद खोले, उनकी आंखें खोली। और ये उस शिफा का जिक्र है, उसकी किरणों में शिफा होगी और वो बहुतों को रास्तबाज ठहराएगा। और वो अपनी जारी का दुख उठाकर अपनी नस्ल को देखेगा। और मेरे लिए और आपके लिए ये बड़ी ही हौसला अफजाई और उम्मीद की बात है कि हम उस वाक़े की, उस तारीखी वाक़े की जो खुदा यीशु मसीह के मुतल्लिक़ अब्रानियों के नाम खत पे ये बात मौजूद है। खुदा यीशु मसीह आज कल बल्कि अब तक यहाँ है, यकसा है। वो जैसा वो इब्तिदा में था, जो खुदा के साथ था, और फिर वो जो उस वक्त था, और फिर जब वो कलाम मुजस्सम हुआ, जो कलाम की सूरत में खुदा का कलाम मुजस्सम हुआ, जो खुदा के साथ मौजूद था, तो फिर उसके सारे काम को हम देखते हैं, उसके गुनाह से मकदसी का इंतजाम किया। ये शिफा गुनाह से मकदसी का, और फिर जी उठना उसका, ये पुरानी इंसानियत का खात्मा। जो वो मर गया तो वो पुरानी इंसानियत का खात्मा हो गया खुदा यीशु मसीह में। पुरानी इंसानी नस्ल का खात्मा खुदा यीशु में, और जी उठने में एक नए इंसान ने जन्म लिया। और जो उस पर ईमान लाए, हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और शिफा का एक बड़ा निजाम, जो इस शिफा से सबसे बड़ी तसल्ली की बात मुकाशफा की किताब के 21वें बाब की 3री आयत में, ये मैं आपके लिए जरूर पढ़ूंगा, क्योंकि ये हमारे लिए इस मुकाशफा को जानना बहुत जरूरी कि ये शिफा, ये आफ्ताब सदाकत ताबे होगा, और ये शिफा। और फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देख, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है, वो जी उठा है। हालेलुया, वो जी उठा है, इसलिए वो उसका खैमा आदमियों के दरमियान मौजूद है। और वो उनके साथ सुकूनत करेगा। कलीसिया खुदा की कलीसिया, ये मेरी या किसी बिशप की कलीसिया नहीं, खुदा की कलीसिया। और खुदा कलीसिया में सुकूनत करता, और वो उसका खैमा आदमियों के दरमियान, और वो अपनी नस्ल को देखेगा, और वो उनके साथ सुकूनत करेगा। मैं जाता हूँ और फिर एक दूसरा मददगार तुम्हारे लिए भेजूंगा, जो तुम्हारी शिक्षा का काम जारी रखेगा और सुकूनत करेगा। और वो उसके लोग होंगे, और खुदा आप उनके साथ रहेगा। ये याद रखें कि खुदा अपने पापों के वसीला से कलीसिया में सुकूनत करता। आप खुदा का खैमा, और वो उनकी आंखों की, ये है शिफा, ये रूहानी शिफा, ये जिस्मानी। और उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। इसके बाद न मौत रहेगी, न मातम, न आहनारा, न दर्द। पुरानी चीजें जाती रही, पुरानी इंसानियत ही जाती रही। वो शिफा का काम जारी हो गया। आफ्ताब सदाकत ताबे होने से वो शिफा का काम आज भी रूहुल कुद्स के वसीले से आपकी जिंदगी में जारी। तो खुदा आपके दरमियान सुकूनत करता है। ये सबसे बड़ी बात ये, खुदा यीशु से सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा।
हमने हमें अगर आराम की जरूरत है फिर खुदावंद यीशु मसीह की दावत आप सबके लिए मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। और आप सबके लिए खुदावंद यीशु मसीह के का जी उठना, उस पर ईमान लाना। और फिर हमने गुड फ्राइडे पे अब्राहम के नाम सब के ने ये देखा था 10वें बात में कि मैं फिर तुम्हारी बेदीनियों को और गुनाहों को फिर कभी याद नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये सिंफुलनेस से राइचसनेस, ये शिफा का काम, मैं तुम्हें उस हालत से बरी करता, उससे जस्टिफाई करता, आप मुझसे बरी, और आप उसकी रास्तबाजी में अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं, अब जो मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है और उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी है हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। आपके पास नजर मेरे सब और बरकत है। ये नजर सुनने के बाद जी आपसे एक मैं गुजारिश करूंगा, आप थोड़ा ध्यान रखें आप सबसे। मसीह में आप सबकी सलामती हो और मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी ईस्टर। मुझे लग रहा है आज लोग खुश नहीं है, आज तो बड़ा खुशी का दिन है कि हमारा खुदा यीशु मसीह जिंदा हुआ है। अभी लोग खुश हो जाएंगे आपके नाश्ता करके। नहीं, नाश्ते से पहले ही खुश हो जाएंगे। जी उठा है आज मसीह हमको चलाने के लिए, जी उठा है आज मसीह हमको चलाने के लिए, मौत के बंध से दुनिया को छुड़ाने के लिए, मौत के बंध से दुनिया को छुड़ाने के लिए। अगर तू मसलूब ना होता, अगर तू मसलूब ना होता तो मैं मरता था गुनाह में, अगर तू मसलूब ना होता तो मैं मरता था गुनाह में। तूने सब कुछ ये किया मेरे बचाने के लिए, तूने सब कुछ ये किया मेरे बचाने के लिए। जी उठा आज मसीहा हमको जलाने के लिए। तेरी कुदरत का बयान मेरे मसीह हो नहीं सकता, तेरी कुदरत का बयान मेरे मसीह हो नहीं सकता। इल्म कासिर है तेरे राज बताने के लिए, इल्म कासिर है तेरे राज बताने के लिए। जी उठा है आज मसीह हमको जलाने के लिए। खेल है उनके लिए मर के जी उठना, खेल है उनके लिए मर के जी उठना। यही एक राज था दुनिया को बताने के लिए, यही एक राज था दुनिया को बताने के लिए। जी उठा है मसीह हमको जलाने के लिए। नाज दुनिया को ये खुशखबरी सुनाते हरदम, नाज दुनिया को ये खुशखबरी सुनाते हरदम कि मसीह जिंदा है दुनिया को बचाने के लिए, कि मसीह जिंदा है दुनिया को बचाने के लिए। जी उठा आज मसीह हमको जलाने के लिए, जी उठा आज मसीह हमको जलाने के लिए। थैंक यू। आसमानी खुशी
चेहरा यीशु मेरे सामने मैं देखूं तुझे तेरा चेहरा यीशु मेरे सामने मैं देखूं तुझे झुके सिर मेरा तेरे सामने झुके सिर मेरा तेरे सामने छू ले मुझे तेरा चेहरा यीशु तेरे सामने मैं देखूं तुझे तेरा चेहरा यीशु तेरे सामने मैं देखूं तुझे झुके मेरा तेरे सामने झुके सर मेरा तेरे सामने छू ले मुझे तेरा चेहरा यीशु तेरे सामने मैं देखूं तुझे हमारे भाई हैं जो हमें बड़ा याद रखते हैं कि हमारे हमेशा साथ खड़े रहते हैं तो इसकी तामीर हो, इसकी तरक्की हो, इसकी डेकोरेशन ये अपने हजियों दरबारों के साथ हमारे साथ हमेशा रहते हैं। भाई आपको खुदावंद आपसे खानदान को बड़ी बरकत दे। मेरी तरफ से मैं सबके छोटे बड़ों को सलाम और इज्जत निकालूं। बेटे ऐसे ही आपने पिछली देखा है मैंने अक्सर से पीछे बड़ा कुछ देखा 3-4 से मैं आज शुक्र खुदावंद का धन्यवाद और चर्च किया ऐसे ही खुदावंद इस चर्च को कैसे करे और खुदावंद इतनी तरक्की दे 5 साल की मेहनत को मैं दूर करता हूँ। ये भाई ये टीम वर्क है और भी लोग मेरे साथ सबसे पुरानी शख्सियत जो आज भी मेरे साथ है ना शुरू से 2006 में मैं आया था सबसे पुरानी जो शख्सियत है वो मिसेस नसरीन इसराइल में जो शुरू से मेरे साथ है। फिर ये टीम वर्क है, ये मेरे अकेले का खुदा का काम है, ये टीम वर्क है। कामरान आप जरा फातेह आप जरा खड़े ये गीत के दौरान आपने बेंचेस से बाहर आपने सब ने एक दूसरे से मिलना है सब ने अक्सर मैंने देखा कि हम ना चर्च में ऐसे होते हैं जैसे ट्रेन के मुसाफिर होते हैं। एक यहाँ से चला स्टेशन से आगे उतर गया, एक दूसरे से कोई पता ही नहीं। आप खुदा के लोग हैं, खुदा की रिवायत है, खुदा की कलीसिया है, सब आप एक दूसरे से मिले, हैप्पी ईस्टर कहे, गॉड ब्लेस यू कहे, सब आप मिले ईद की बधाई। हालेलुया। एक मिनट एक सेकंड भाई अरशद भट्टी और मिस्र का डॉक्टर मसरत भट्टी आप जरा हदिया देने के लिए आप मिले हदिया नगारों से खुदावंद की तारीफ
देखिए आप हमें नहीं रहे सब भाई भाई यहाँ से बैठे और मैं भी मेहमान से बैठे था ठीक हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमारी ज़िंदगी में आज ख़ास दिन दिया और आज हमारे लिए ये बहुत बड़ा दिन है। क्रिसमस से ज़्यादा ये अहमियत रखता है हमारे लिए। तो हमें आज के दिन जो है यीशु मसीह की सारी तकलीफ़ें, दुख जो उन्होंने हमारी ज़ात के लिए उठाए और आज हम नजात में हैं, आज हम आज़ाद हैं, उन दुख तकलीफ़ों से खुदा ने हमें निकाला है। और आप सबको हैप्पी ईस्टर। मसीह में तमाम कलीसियाओं को मेरी तरफ से हैप्पी ईस्टर। और ये बहुत बड़ा दिन है कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे हैं और आज हम सब मिलकर बड़ी खुशी मना रहे हैं और इसके लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने आज हमें ये दिन दिया है। मेरी तरफ सब बहन भाइयों को ईस्टर मुबारक। प्रेस्बिटेरियन चर्च मक्का कॉलोनी, ये पादरी साहब की सरबराही में ये आप देख रहे हैं, ये टीम है, ये मेरी टीम है, यूथ की है और ये टीचर्स हैं और इंतज़ामिया हैं। ये पूरी टीम है जो खुदावंद के घर के सारे काम करते हैं, सफाई तक करते हैं, डेकोरेशन करते हैं। ये पूरी टीम जो है वो ये सारे काम करती है। तो मैं भी इनको कहता हूँ, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सबका, आप जो तावन करते हैं, कलीसिया जो चर्च की है वो पूरा तावन हमसे करती है, तो हम सारे ये काम पूरे करते हैं। मेरी तरफ से और मेरे ख़ानदान की तरफ से आप सबको ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो। मसीह में आप सबको इस्लाम और आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए हैं और खुदा का शुक्र है कि आप इस यहाँ से बहुत बरकत लेके जाएंगे। खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। और आज का दिन जो ईस्टर का दिन है, आप सबको मुबारक हो। ये खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की ईद है, जिसको ईद क़यामतुल मसीह कहते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा है वो खुदा का बेटा है और वो अज़ल से ज़बा किया हुआ बर्रा है। और ये अज़ल से प्लान था खुदा का कि जब वो अपने बेटे को ज़मीन पर भेजेगा तो वो उसको वापस ले लेगा। और दाऊद नबी ने भी उसके लिए कहा है कि तू अपने मुकद्दस को सड़ने नहीं देगा। तो खुदावंद यीशु मसीह कोई मुर्दा नहीं है, वो किसी कब्र में नहीं है। दो चीज़ें उसकी ज़िंदगी की गवाह है कि खुदावंद यीशु मसीह की सलीब आज भी खाली है और वो कब्र भी आज तक खाली है। वो कब्र मुंह बोलता सबूत है कि वो मुर्दों में से जी उठा है, वो मुर्दा नहीं है। और अब उसे खुदा बाप ने अपने दाहिने हाथ बिठाया है। खुदावंद यीशु मसीह का रुतबा जो उसका रुतबा है उस जैसा और किसी का भी नहीं है। हम खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ करते हैं और आज का दिन आप सबको मुबारक हो। सबसे पहले तो शुक्र करते हैं खुदावंद का, सबसे पहले खुदावंद का शुक्र करते हैं और उसके बाद भाई साहब का जो इस चर्च के इंचार्ज हैं, पास्टर इंचार्ज हैं, उनकी सरबराही में ये चर्च के सारे काम होते हैं। और ये आपने देखा है, डेकोरेशन हुई है, सारे काम, ये एक टीम है, यूथ टीम है, इंतज़ामिया है और टीचर्स हैं संडे स्कूल की, वो करती हैं। और फिर कलीसिया के तावन से सारे ये काम होते हैं। आज जो सनराइज सर्विस है, आपने देखा है कि कितना रश था, लोग कितने खुश थे कि आज हम उस यादगार मौका को बनाते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह तीसरे दिन जिंदा हो गए थे, आसमान पर चले गए। आज सनराइज सर्विस बहुत अच्छी हुई है और भाई साहब की सरबराही में ये सब कुछ इबादत के प्रोग्राम हुए। शुक्रिया।
जी, तो मसीह में आप सबकी सलामतियों। मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे यूथ को बहुत प्रेफर किया जाता है। यहाँ पे यूथ को फ्री हैंड दिया जाता है ताकि वो चर्च के कामों को किया जाए। मैं एज अ यूथ लीडर यहाँ प्रेस्बिटेरियन में सरपरस्ती करता हूँ, तो पास्टर साहब की सरबराही में सारे यूथ के काम होते हैं, जितने भी यूथ के फेस्टिवल होते हैं वो यहाँ पे किए जाते हैं। तो पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर जी का, उसके बाद कलीसिया का, कि जो हमें इस काबिल समझती है और हम यूथ के काम करते हैं और सारे काम होते हैं, और सारे कामों को यूथ ने संभाला हुआ है चर्च के, और खुदा फजल अता कर रहा है। मेरी तरफ से खुदावंद की सब कलीसिया को ईद मुबारक। और मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं एक मसीह घराने से तल्लुक़ रखता हूँ, मसीह ख़ानदान में पैदा हुआ, और मैं उस खुदा की इबादत करता हूँ जो ज़िंदा है, जो मुर्दों में से ज़िंदा हो गया और आसमान पर चला गया, और ज़मीन और आसमान का अख्तियार मसीह यीशु के पास है। पाक कलाम में लिखा है ये। मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को दोबारा ईस्टर मुबारक। जनाब मेरी तरफ से तमाम मसीह बहन भाइयों को ईस्टर मुबारक। जनाब ये आज ईस्टर का दिन है, सुबह सुबह की इबादत हो रही है, और हमारे पास्टर साहब ने प्रेस्बिटेरियन के चर्च के जो पास्टर हैं उन्होंने ये लोगों के लिए नाश्ते का अरेंज किया हुआ है। ये सारा जितना भी है इंतज़ामिया, मेरे साथ ये बच्चे हैं, मेरे साथ बहनें हैं, जिन्होंने सारे ये काम किया है ताकि लोग आराम से सुबह सुबह आएँ और ये नाश्ता करें और खुदावंद के नाम को बढ़ाई हो। थैंक यू सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से, पूरी कलीसिया को, पूरी दुनिया के लोगों को मेरी तरफ से ईस्टर मुबारक। खुदावंद यीशु मसीह के जलील कदर नाम में सब मसीह बहन भाइयों को ईस्टर की मुबारकबाद देता हूँ। हमारे मक्का कॉलोनी में मैसी साहब जो हमारे पास्टर हैं, उन्होंने ये नाश्ते का इंतज़ाम किया है, और यहाँ पे इस तरह की गैदरिंग है कि जैसे ना ईद का वाकई समा है। नहीं तो मोस्टली क्रिश्चियन आबादियों में तो होता है, लेकिन मुस्लिम आबादियों में नहीं होता। लेकिन बहुत अच्छा इंतज़ाम है, सब लोग खुश हैं, सब इंतज़ामिया खुश है। मेरी तरफ से चर्च इंतज़ामिया को और तमाम लोगों को बहुत बहुत ईस्टर की मुबारकबाद।